کرتے ہیں سبق نمبر 10 آفات کے دوران حسن انتظام سوال و جواب۔ سوال نمبر 1 ہم میں مختلف کون ہیں؟ الف قحط، زلزلہ، بادلوں کا پھٹنا، ریل حادثہ۔ تو یہاں پر ہمیں مختلف جو لفظ ہے وہ ہے ریل کا حادثہ۔ اسے مختلف کرنا ہوگا کیونکہ قحط، زلزلہ اور بادلوں کا پھٹنا یہ تینوں بھی قدرتی آفات ہیں، اس لیے ہمیں ریل کا حادثہ اسے مختلف کرنا ہوگا۔ بے ہے خشک سالی، بہت بارش، طوفان، سونامی۔ اب یہاں پر خشک سالی یہ لفظ الگ ہے کیونکہ بہت بارش، طوفان، سونامی یہ سب پانی سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں اور خشک سالی میں بارش نہیں ہوتی۔ جیم ہے لاوا، گرم کیچڑ، راکھ، ٹڈی دل کا حملہ۔ تو یہاں پر ٹڈی دل کا حملہ الگ ہوگا کیونکہ لاوا، گرم کیچڑ اور راکھ یہ آتش فشاں کے پھٹنے سے زمین سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے ٹڈی دل کا حملہ یہ الگ لفظ ہے۔ اور دال ہے فصلیں بہہ جانا، فصلوں کو کیڑ لگنا، آتش فشاں کا پھٹنا اور فصلوں کا جل جانا۔ تو یہاں پر فصلوں کا بہہ جانا، فصلوں کو کیڑ لگنا اور فصلوں کا جل جانا یہ تینوں بھی کھیت سے متعلق آفتیں ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو آتش فشاں کا پھٹنا اسے مختلف کرنا ہوگا۔ اب سوال نمبر 2 ہے ان آفات سے بچنے کے لیے تدابیر بتائیے۔ الف ہے قحط، اسے انگلش میں ڈراٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہمیں اس طرح لکھنا ہوگا قحط سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر کرنے چاہیے۔ نمبر 1 پانی کا منصوبہ بند طریقے سے اور احتیاط سے استعمال کرنا۔ نمبر 2 پانی کا دوبارہ استعمال کرنا۔ نمبر 3 مقامی طور پر آبی تحفظ کی مناسب منصوبہ بندی کرنا۔ نمبر 4 بڑے پیمانے پر شجر کاری کرنا اور درختوں کی کٹائی روکنا۔ نمبر 5 چھوٹے چھوٹے بند تعمیر کر کے پانی کی ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اور نمبر 6 موسم کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے اثرات ہر جگہ نظر آتے ہیں، اس لیے ہمیں پانی کی دستیابی کی منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ اب بے ہے بجلی گرنا، لائٹننگ اسٹرائک۔ تو اس کا جواب ہے بجلی سے بچنے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 1 بجلی چمکنے کے دوران گھر سے باہر نہ نکلے، کھلے میدان میں یا درخت کے نیچے کھڑے نہ رہیں، کسی اونچے مقام یا درخت پر نہ چڑھیں۔ نمبر 2 بجلی یا ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ رہیں۔ نمبر 3 کھیت، صحن، باغ اور مکان کے اطراف کے تار کمپاؤنڈ کو نہ چھوئیں۔ نمبر 4 اسکوٹر، سائیکل، ٹریکٹر یا کشتی پر ہوں تو فوراً اتر کر کسی محفوظ جگہ چلے جائیں۔ نمبر 5 ایک وقت میں کئی لوگ ایک ہی جگہ جمع نہ رہیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ 2 افراد کے درمیان اندازاً 15 فٹ کا فاصلہ رہے۔ نمبر 6 بجلی کی کڑک کے وقت ایسے آلات استعمال نہ کریں جن سے بجلی کا پلگ جڑا ہوا ہو، اسی طرح ٹیلی فون یا موبائل کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 7 تیراک مچھیرے پانی سے فوراً باہر آ جائیں۔ اور نمبر 8 ایسے وقت میں پکے مکان سب سے محفوظ مقام ہیں، ممکن ہو تو اپنے مکانوں پر برف روباں ضرور لگائیں۔ اب اس کے بعد جیم ہے طوفان، اسٹارم۔ اس کا جواب ہے طوفان سے بچنے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 1 طوفان کے دوران موسلا دھار بارش کے ساتھ تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے درخت گر جاتے ہیں، اس لیے درختوں کے نیچے پناہ نہ لیں۔ نمبر 2 طوفان میں گرنے پر کسی محفوظ جگہ پناہ لیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو اس کی اطلاع قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو ضرور دیں۔ نمبر 3 ایسے وقت میں مدد کے طلبگار کو سہارا اور پناہ مہیا کرانے میں مدد کریں۔ نمبر 4 طوفان کے وقت ریڈیو یا ذرائع ابلاغ کے کسی بھی ذرائع سے طوفان کے بارے میں ہدایات اچھی طرح سن کر حفاظتی نقطہ نظر سے ان پر عمل کریں۔ اور نمبر 5 طوفان کے آنے سے قبل لوگوں کا پھنسے ہوئے مقامات پر پتہ لگا کر انہیں بچایا جا سکتا ہے۔ اب دال ہے بادل کا پھٹنا، کلاؤڈ برسٹ۔ اس کا جواب ہے بادل پھٹنے کے دوران احتیاطی تدابیر مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 بادل پھٹنے کے دوران موسلا دھار بارش ہوتی ہے، اس لیے ایسے وقت ہمیں محفوظ مقام پر قیام کرنا چاہیے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نمبر 2 ایسے وقت میں پہاڑ کے دامن، ندی کے کنارے یا ساحل سمندر پر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 3
तफरीह या लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए ऐसे मकामात पर रुकना ख़तरनाक हो सकता है। नंबर 4, पानी के तेज़ बहाव के सबब डूबने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें महफूज जगहों पर क़याम करना चाहिए और दूसरों को भी इस बात की तरग़ीब देनी चाहिए। अब सवाल नंबर 3 है, सही या गलत वजूहात के साथ लिखिए। इसका अलिफ है, तूफ़ान आने वाला है, ये इत्तला राज में रखना होता है। तो इसका जवाब यह है कि ये बयान गलत है। अब इसकी वजह है कि लोगों को आने वाले तूफ़ान की मालूमात पहुंचाना ज़रूरी है ताकि वो इसके असरात से महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सके। बे है, आसमान में बिजली चमकते वक्त तैरने से परहेज़ करें। तो ये बयान सही है और इसकी वजह है क्योंकि पानी बर्क़ का मौसल है। बिजली चमकते वक्त बरक़ीरों पानी पर आसानी से सरायत कर सकती है और तैरने वालों के लिए ख़तरे का बाज़ बन सकती है। इस वजह से तैराक की जान भी जा सकती है। अब जीम है, आतिश फ़िशा फटने को टालना मुमकिन है। ये गलत बयान है। इसकी वजह है आतिश फ़िशा का फटना एक कुदरती आफत है जो किसी भी वक्त आ सकती है। इस आफत को टालने के लिए किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं है। और दाल है, ज़्यादा बारिश की वजह से कहत पड़ता है। तो ये बयान सही है और इसकी वजह है ज़्यादा बारिश के सबब फसलें और मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। इसे हम नम कहत कहते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे। झील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ है, सुनामी किसे कहते हैं, वो किस तरह पैदा होती है। तो इसका जवाब है, सुनामी जापानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सुनामी के मानी है साहिल समंदर से आकर टकराने वाली पानी की बड़ी लहर। समंदर में ज़लज़ले आने पर या आतिश फ़िशा के फटने से बाहर खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर की जानिब धकेलती है। नतीजे में समंदर में मखसूस किस्म की लहरें बनती हैं। यही सुनामी लहरें कहलाती हैं। ये जहाँ बनती है वहाँ उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहुत तेज़ रफ्तार से दूर दूर तक फैलने लगती हैं। इन लहरों की रफ्तार 800 से 900 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, लेकिन साहिली हिस्सों तक पहुँचने पर रफ्तार की बनिस्बत इनकी बुलंदी बहुत ज़्यादा यानी 100 मीटर तक बढ़ जाती है। अब बे है, बादल का फटना किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है, ज़मीन के ख़ास या छोटे हिस्से पर कलील वक्त में अचानक मूसलाधार बारिश बरसने को बादल का फटना कहते हैं। बाज़ औक़ात बारिश लाने वाले बादल से नीचे आने वाला पानी बारिश की शक्ल में ज़मीन पर न गिरकर ज़मीन के ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से दोबारा आबी बुखारात में तब्दील होकर उसी बादल में समा जाता है, जिस वजह से उस बादल में भाप का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा हो जाता है और तेज़ी से अमल तकसीफ की वजह से तकरीबन 100 मिलीमीटर फ़ी घंटा या उससे भी ज़्यादा रफ्तार से बारिश होती है, जिसे हम बादल का फटना कहते हैं। अब जीम देखेंगे। आतिश फ़िशा के फटने से होने वाले असरात वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है, आतिश फ़िशा के फटने से होने वाले असरात मंदरजा झील हैं। नंबर 1, जब किसी मकाम पर आतिश फ़िशा फटता है तो उसमें से लावा, भाप, गर्म कीचड़ और गंधक जैसे कीमियाई मादे ज़मीन की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं। नंबर 2, जब ये कीमियाई मादे खारिज होकर ठंडे हो जाते हैं तो इनसे टेकड़ियाँ और पहाड़ वजूद में आते हैं। नंबर 3, आतिश फ़िशा के ज़रिए खारिज होने वाली राख और गैसों की वजह से माहौल आलूदा होता है। नंबर 4, कई बार आतिश फ़िशा के फटने की वजह से बारिश होती है। नंबर 5, गर्म हवा की वजह से दर्जे हरारत बढ़ता है। और नंबर 6, गर्म लावे में जंगल और इंसानी बस्तियां दफन हो जाती हैं। अब इसके बाद दाल है, बिजली के गिरने से जानी नुकसान टालने की क्या तदाबीर हैं। तो इसका जवाब है, बिजली के गिरने से जानी नुकसान टालने की मंदरजा झील तदाबीर है। नंबर 1, बिजली चमकने के दौरान घर से बाहर ना निकले, खुले मैदान में या दरख्त के नीचे खड़े ना रहें, किसी ऊंचे मकाम या दरख्त पर ना चढ़े। नंबर 2, बिजली या टेलीफोन के खंभे, टावर वगैरह के करीब ना खड़े रहें। नंबर 3, खेत, सहन, बाग और मकान के अतराफ के तार कंपाउंड को ना छुएं। नंबर 4, स्कूटर,
साइकिल, ट्रैक्टर या कश्ती पर हो तो फ़ौरन उतरकर किसी महफूज जगह चले जाएं। नंबर 5, एक वक्त में कई लोग एक ही जगह जमा न रहे और इस बात का ख्याल रखें कि 2 अफराद के दरमियान अंदाज़न 15 फीट का फासला रहे। नंबर 6, बिजली की कड़क के वक्त ऐसे आलात इस्तेमाल न करें जिनसे बिजली का प्लग जुड़ा हुआ हो। इसी तरह टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल न करें। नंबर 7, तैराक, मछेरे पानी से फ़ौरन बाहर आ जाएं। और नंबर 8, ऐसे वक्त में पक्के मकान सबसे महफूज मकाम है। मुमकिन हो तो अपने मकानों पर बरक़रुबा ज़रूर लगाएं। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। महाराष्ट्र में आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के तहत सैलाब, चट्टान के खिसकने के ताल्लुक से कौन सी तदाबीर की गई है? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र में आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के तहत सैलाब, चट्टान के खिसकने के ताल्लुक से मंदरजा झील तदाबीर की गई है। नंबर 1, महाराष्ट्र में लोगों की ज़िंदगी और असासों की आफात से हिफाजत के लिए हुस्न इंतज़ाम का छोटा सा इदारा कायम किया गया है। नंबर 2, इस इदारे के तहत लोगों को तूफ़ान, ज़लज़लों या सैलाबों से मुतालिक पेशगी इत्तलाआत फराहम की जाती हैं। नंबर 3, कौमी सतह से लेकर देहात तक सैलाब पर काबू पाने का मंसूबा तैयार रहता है। इस मंसूबे की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान को टाला जा सकता है। नंबर 4, बादल फटने या चट्टानों के खिसकने पर लोगों के रिहायशी मकानात को नुकसान होता है तो सरकार आर्जी पनाहगाहें मुहैया कराती है। नंबर 5, कुदरती आफात के ख़तरे के पास सरकार लोगों को महफूज मकामात पर बसाने की कोशिश करती है। और नंबर 6, कुदरती आफात के दौरान सरकार मुतासरा लोगों को तिब्बी इमदाद और इसी तरह हर किस्म की मदद फराहम करने का मंसूबा अमल में लाती है। अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक से आप अपने मकान में कौन कौन सी चीज़ों की जांच करेंगे और क्यों? तो इसका जवाब है आफात के दौरान हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक से हम अपने मकान में मंदरजा झील चीज़ों की जांच करेंगे। नंबर 1, घर में फर्स्ट एड किट मौजूद होनी चाहिए ताकि फ़ौरन तिब्बी इमदाद मिल सके। नंबर 2, घर के सारे इलेक्ट्रिक चीज़ों के स्विच बंद होने चाहिए। नंबर 3, घर के दरवाजे, खिड़कियां दुरुस्त कर लेने चाहिए ताकि बारिश और तूफ़ान से बचा जा सके। नंबर 4, अपने घर का गैस का स्विच बंद होना चाहिए ताकि कोई हादसा न हो। नंबर 5, अगर घर के आसपास कहीं पुराना सूखा हुआ दरख्त हो तो उसे फ़ौरन काट डालना चाहिए क्योंकि तूफ़ानी हवा की वजह से इनके गिरने का इम्कान ज़्यादा होता है। और नंबर 6, अपने मकानों पर बरक़रुबा लगा ले ताकि बिजली गिरने का डर न रहे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के सवालात के जवाबात समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।